शुभम सर हैं, महिमा मैम हैं, संगम अग्रवाल सर हैं और बीएम गुप्ता सर हैं। पहले हम वन बाय वन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद आज का जो टॉपिक है जीएसटी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, उनके बारे में क्वेश्चंस आंसर और सारे प्रोविजन को देखेंगे। और यदि आपको किन्हीं को भी क्वेश्चन पूछना है बीच में तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोऑर्डिनेट करके बोर्ड कर लूंगा इसके ऊपर और आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अनिल जैन सर से सेल्फ इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। Namaskar, Sandeep ji, all my panelists and viewers. It's my privilege to have participate on this esteemed platform. Myself, Anil Jain. I am Chief General Manager, Indian Corporation. My experience is regarding basically this tax management and licensing of direct and indirect both. I have been associated with GST policy wing of Ministry of Finance also at the time of drafting GST law. And I was one of the member of a special group constituted for oil and gas industry of the country. Later on, I participated in OECD conference at Melbourne in 19, along with the ministry officials. From where we studied this return, GST return, and brought into the country some major features. After that, the GST return has very smooth. And being senior official of the India's largest company, Indian Oil, we are on the forefront to implement all taxation, we can say revolution, because we are the largest taxpayer of the country in central government as well as states. In most of the states, we are also largest taxpayer. Our annual contribution to exchequer is around 2.5 lakh crore rupees. And we are registered in all the states. So, as I said to my panelists also, I hope I will be helpful in tax management. And earlier also I was involved with the Punjab government when I was in my previous posting at Chandigarh. Then I also one of the member of digitalization of sales tax formalities. So this is my brief introduction. I will not take much time. Thank you. Thank you, sir. Shubham Agrawal, sir, please. Good evening, everyone. So I'm CA Shubham Agarwal. I'm a practicing chartered accountant as a partner in my firm, and I have a post-qualification experience of more than a decade. I have also done my law from Faculty of Law, and I've also done DISA and GST certificate course from ICI. And I have also been a special invitee to Indirect Tax Committee of ICI in 2019 and 20. And I've given various seminars and sessions on various platforms, including NIRC, Nikasa, some colleges, and I've also been featured on CBIC Twitter handle, and I've also been invited on television shows of Doordarshan. So I'm practicing in GST since 2017 when it was launched, and GST is my forte. Thank you very much. Thank you, sir. Mahima ma'am, please. Kindly unmute yourself, Mahima. Kindly unmute. नमस्कार, मेरा नाम महिमा जैन है और मैंने 2008 में अपना सीए क्वालिफाई किया। पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी कुछ मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन से, लाइक भारती, वॉलमार्ट और सिटी बैंक से। अब मैं 8 साल से जीएसटी में 8 साल से प्रैक्टिस में हूँ और इनडायरेक्ट टैक्स ही मेरा मेन एरिया रहा इन माय होल टेन्योर। तो पहले सर्विस टैक्स वैट था, अब जीएसटी है। आप ये कह सकते हैं कि मैं अब एक प्रैक्टिशनर हूँ जो कि इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरा जो ग्रूमिंग हुआ वो इंडस्ट्री से हुआ है। तो लॉ के अंदर जो लिखा जाता है उसको इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो मेरा मेन एक उद्देश्य रहता है कि हम बिजनेस को ऐसे सपोर्ट कर लें जिससे कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ प्रॉपर्ली अपने बिजनेस में। Thank you, ma'am. BM Gupta, sir. Good evening, all of you. I'm Mallikarjun Gupta. Though I'm into GST, I'm not a COP holder. And I'm also the co-opted member for the Indirect Tax Committee at Central Level for the Institute of Cost Accountants of India. I've authored around 14 books, including many of them on GST. And I'm also a member of the Grievance Redressal Committee in Hyderabad Zone for the last 4 years. And I'm actively involved in the policy advocacy
and my core areas of practice is tax and technology litigations. Thank you, Sandeep ji. थैंक यू सर। संगम अग्रवाल सर। Thank you, Sandeep ji. Friends, as you know that myself CA Sangam Agarwal, I qualified my CA in 2009, and from initially I joined a company Ifco General Insurance for 1.5 years. Thereafter, I am doing my own practice as a managing partner of a SHN company, chartered accountant, having a category 1 CA firm. Apart from that, currently I am a regional council member of NIRC of ICI. In the year 22 to 23, I was secretary NIRC as well. So currently my main forte of working litigation, in which direct and indirect both. So recently I was involved in a very good amendment at SGST level. For example, earlier when in SGST, when we filed the rectification petition, in that case against any order of 73, that time department is not going to move such application. They blindly rejected that we don't have any power to do any rectification of any order 73. But through Sale Tax Bar Association, I am the member of STBA. STBA, one of the largest bar and oldest bar of India. Through that, we move and meet the commissioner, and accordingly, we get a circular in which now the mistakes based upon that, in which reply was not submitted and other issues has been taken through rectification. So these are my core area of practicing doing litigation thing in direct and indirect both. Thank you. थैंक यू सर। आज का जो सेशन है जीएसटी के अंदर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के ऊपर है, और आज मैं आमंत्रित करूंगा बीएम गुप्ता सर को कि आज का सेशन मॉडरेट करें। थैंक यू सर। Yeah, good evening, Sandeep ji. We all know that GST has been rolled out. It's more than 7 years. We have a lot of experiences. We have seen ups and downs also. Now, when it comes to the scrutiny of returns, there are two things involved. The return filing is not the end in the GST, but it is the beginning. And the route for return filing, if you ask me personally, and I'm sure that all my co-panelists also will agree, accounting is the route for filing of returns under GST. Now, straight away getting to the subject, since Mahima Jain is from the industry and she has grown in the industry itself. So my first question is to her basically, and it's always ladies first. So ma'am, so how do you see the transformation in return filing when it compares to the erstwhile return regime like service tax, VAT and central access to GST? रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस मैं इसको ऐसे कहूँगी, आपने बहुत राइटली बोला है कि अकाउंटिंग इज द बेसिक एक्चुअली विच गोज टू रिटर्न फाइलिंग। अगर अकाउंटिंग नहीं ठीक से किया तो हम रिटर्न्स तक ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे। मोरओवर अब ये चीज़ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारा बुक्स और रिटर्न के बीच का जो रिकन्सिलिएशन है वो बिल्कुल इन प्लेस हो। अगर वहाँ कहीं कोई गैप रह गया तो हम अननेसेसरी का स्क्रूटनी भी इन्वाइट करेंगे और आगे का लिटिगेशन भी इन्वाइट करेंगे। पहले जब वैट और सर्विस टैक्स के एरा में हम लोग थे तब कोई रिकन्सिलिएशन फाइनेंशियल्स के साथ होता नहीं था। वैट के अंदर वो स्टेट वाइज एक ट्रेडिंग ले लिया करते थे, जिसका भी वो अगर पैन इंडिया प्रेजेंस है आपका तो आप उसमें एक सर्टिफाइड ट्रेडिंग सबमिट करते थे। सर्विस टैक्स में ऐसा कुछ था ही नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या रिकन्सिलिएशन है। देयर वाज नो लिंक बिटवीन द चलान पेमेंट एंड द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। नाउ जीएसटी में चलान पेमेंट एंड योर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आर इंटरलिंक्ड। सो देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस। इनपुट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एटलीस्ट इन सर्विस टैक्स। वैट में कुछ हद तक एग्जिस्ट करता था। तो it is like a paradigm shift pre-era and post-era in the compliance process. Yes, ma'am, I do agree with you all. Now the next question is to Shubham ji. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 7 साल से ज़्यादा देख चुका है अपन लोग, और 17-18 का इश्यू ऑफ नोटिसेस अंडर 73 has been stopped. Now with the 73 section getting a dead end basically, can the department invoke section 61 for scrutiny of returns and take proceedings for 17-18? देखिए, a very beautiful question. The thing is, section 61 is always open. What is time barred is section 73, issuing of notices. 74 is something which is still prevalent, right? So whenever a notice is issued under section 61 for scrutiny of returns, डिपार्टमेंट हमेशा एक 74 का क्लॉज बना सकता है कि देयर इज अ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है बाय द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर,
वो 74 के अंदर आपको नोटिस या शो कॉज देके जरूर DRC 7 में ऑर्डर इशू कर सकता है. So, perfect, sir. So you have rightly touched the point that we are not yet completed the phase of 17-18 as of now. Yes. So the doors are open for the department to knock us under 74. Yes. So friends, please note this point, as Shubham just rightly said that 17-18 is not an end chapter. It is still the ongoing practice basically, no? So maybe once this 18-19 orders is also issued, department can go back and revisit certain things based on the experience what they have during the last 2 financial years for 17-18 and 18-19. So we need to keep an eye on that, as Shubham just rightly pointed out. Anil Jain, sir, now the question is to you. You are working for one of the leading PSUs, Navaratna company, and you are major contributor to the exchequer. And as Mahima Jain has rightly said that it is a paradigm shift when it comes to the GST era and the pre-GST era. So how did you manage this in the Indian Oil Corporation, or your experience basically when you're interacting with various taxpayers? The transition was smooth to avoid scrutiny of returns. What steps should be taken by the taxpayer based on your experience? Thank you, Gupta ji. I will take forward what Mahima said. In the sense, or lighter way first. It is a Gabbar Singh tax or GST, right? So here question is GST, globally known as VAT, Yes. right? Value added tax. It's nothing changed from the erstwhile VAT. Since our industry, oil and gas, is already, and now we are having compliance of excise. I think some of you may be surprised to know this. Our 50% revenue is from for the excise, and rest 50 is from to the sales tax department and GST. Since our major 5 petroleum products, or 70% of economy is out of GST so far. So this was a major challenge to us, because we have to comply with all the taxes. In lighter way, whenever I used to talk to my colleagues, as you rightly said, that we are the highest taxpayer and largest company of the country. There is hardly any tax which is not applicable to IOC, Indian Oil per se, and oil and gas industry in general. Yes. Right, and we all know oil and gas industry is the major backbone of the economy, not only India, globally as well. Coming back to our implementation, first of all, I will tell you, प्रॉब्लम जब आती है तब आपको अपने बिजनेस का पता नहीं होता. तो फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर बिजनेस, नॉट माय बिजनेस, माय कस्टमर्स बिजनेस, नॉट ओनली कस्टमर्स बिजनेस, माय वेंडर्स बिजनेस. अगर हमने ये देख लिया कि मैं किससे गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा हूँ, फिर मैं कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ और किसको सेल कर रहा हूँ, तो हमें सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं देखना है, हमें हमारे बैकवर्ड फॉरवर्ड एक फुल इंटीग्रेशन चाहिए. So first mantra I will share with all my viewers is this. Second thing, and we are very proud to announce that when GST came on 1st July 2017, we were the one of the first company issued tax GST compliant invoice at 8:15 in the morning. We are very proud to say this. Second thing, we did all development at our own. Not only taxation, but system also. We are the one of the largest user of SAP. It's globally known ERP system. Yes. So, second point I would like to say, well preparedness. और सबसे बड़ा क्या है हमारे बिजनेस की, everybody knows, जैसे कि SWOT एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. तो मेरा ये कहना है कि टैक्सेशन अगर आपको देखना है तो ये सिर्फ एक इससे मैनेजमेंट भी सीखा. तो हमें कोई भी नया रिज्यूम आए या कोई हम नई बिजनेस लाइन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सपोज वी आर एडिंग वन मोर वर्टिकल इन आवर इंडस्ट्री, इन आवर कंपनी, इन आवर बिजनेस, है ना, तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए. जैसे कि बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, होटल इंडस्ट्री, इसका जीएसटी लोकल स्टेट में मिलता है ना, बड़ा अजीब सा प्रोविजन है, बट दिस इज फैक्ट. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. वो कहते हैं यार जीएसटी इनवॉइस बना लिया और हम क्रेडिट ले लेंगे जाके. सपोज आप बॉम्बे में है, दिल्ली, आप अपने ऑफिस काम से आ रहे हैं और आपने अपना होटल में स्टे किया और बिल लेके चले गए, वहां जाकर डाला, वो तो लेगा ही नहीं. बट दिस वाज आल्सो चैलेंज टू अस. व्हाई?
We are registered in each and every state of the country, State. 36 states. So I am telling you, बहुत माइनर इशू, मेजर पे मैं भी नहीं जा रहा, क्योंकि माइनर को समझ जाएंगे तो मेजर अपना आ जाएगा. तो हमने हमारे सिस्टम में थोड़ा चेंज किया कि जो भी लोग ट्रेवलिंग करेंगे, they have to mandatorily give GST number of which state where you are going, visiting state, not your own state. सपोज मैं बॉम्बे में पोस्टेड हूँ, महाराष्ट्र में, और मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मुझे बॉम्बे का नहीं देना है, मुझे दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, इंडियन ऑयल का, है ना, जो भी मेरी कंपनी है. तो बहुत छोटा सा इशू मैंने आपको शेयर किया है. इसके बाद मैं एक बताना चाहता हूँ कि when we started working on this, we started working around mid of the 2015. Since by virtue of my experience, I have been closely associated with policymakers for a long time, not only in Delhi, Ministry of Finance of central government, as well as states also. So we started by that time, because in some of the states we were having some multiple registration number. Because in sale tax also you need to have WCT registration, person contract, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ISD, एक्साइज. एक्साइज सपोज हमारी एक स्टेट में 4 फैक्ट्री हैं, तो एक्साइज रजिस्ट्रेशन तो 4 होंगे, एक तो होगा नहीं, ये तो फैक्ट्री वाइज है. बट एट ए पैन लेवल ग्लोबली आई हैव टू सी दिस. सो मेजर चेंज वी डिड, वी स्टार्टेड बाय सेंट्रलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स TDS. You will be surprised to know why I am talking about income tax TDS when we are talking about GST and return filing. But this is again a very major issue, because at that time we were having more than 500 TDS registration, income tax I am talking about central. So for any company, whatever size it is not feasible to have same level knowledge person at each and every place. So our people were doing some minor mistakes or silly mistakes, we can say. So first of all, we started centralizing. In a 2-year exercise, we centralized into 110 all India basis. And this was appreciated by none other than our income tax department in one of the conference at utility building. कि इंडियन ऑयल जैसी कंपनी अगर ऐसा मेजर चेंज कर सकती है तो फिर क्या प्रॉब्लम है. एनी. तीसरा हमने जो किया, वी स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग आवर वेंडर एज वेल एज सप्लायर्स एज वेल एज माय कस्टमर्स. Again, there was a big challenge to me. We are having now more than 35,000 petrol pumps. At that time, it was around 23,000 petrol pumps. Our seniors has asked, अरे अनिल भाई यार, पेट्रोल पंप से क्या करना है यार, तो GST में है ही नहीं, हम इनको क्यों इतना टाइम एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं. सब बात तो आपकी ठीक लग रही है, पर देयर इज अ प्रॉब्लम. जो मेरा पेट्रोल पंप वाला है वो और भी बिजनेस करता है ना, उसको GST तो एक मिलेगा, क्योंकि GST इज पैन बेस्ड and every state has to get registration. So we educated all 25,000 odd petrol pumps at that time. Similarly, our LPG distributors, more than 10,000. Similarly, our transporters. So this is the third point I would like to share. Fourth, we should be always on the right side of the law. Yes. This is, I am talking not only as a government entity tax officer or a senior officer of a public sector undertaking, otherwise also. Because otherwise, no, sometimes we have to pay a large price to buy peace. Or indirect tax is a pass on levy. Second thing, we must understand this. It's not a direct tax type कि मुझे अपनी cost देनी है. At the same time, we have to see कि इसका impact मेरे supplier और vendor पे क्या जा रहा है और मेरे customer पे क्या जाएगा. Last but not least in this phase, we are talking a strong team. Yes. Internal team. We made 2 junior officers at one of our every state. Junior in the sense, all are chartered accountant. I am very proudly say, all are chartered accountant, cost accountant or MBA finance. So we made a working group, topic wise. Like RCM का एक working group बना दिया, है ना, import का दूसरा working group बना दिया. And some senior level for steering this. So this is my takeaway for this point. Thank you. Perfect, Anil ji. You have rightly endorsed our views that GST is not a tax reform but a business reform. The way we are doing business has seen a
rapid transformation in India last 7.5 years to 8 years. And that can be easily seen by the rankings of ease of doing business in India actually. That has improved from 2014 to 2024. Now we stand around, as per the latest Economist Intelligence Unit report, it says that we are at ranking around 59 basically. So digitalization, GST rollout, insolvency and bankruptcy code, all these have improved in increasing our ease of doing business and garnering more FDIs. So keeping that aside, now I'm asking Sangamji, you are from the industry and you are into practice of GST. So what is the response of the taxpayers the moment they see ASMT 10 in their hand? How do they approach you? What is their fear or the psychology of the taxpayers the moment they see this letter of ASMT 10? थैंक यू सर। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन होता है सर, ये मुझे ही क्यों आया, वाई आई रिसीव दिस नोटिस, मुझे तो नहीं आना चाहिए था ये, मैं तो सारा टैक्स अपना टाइम से जमा करता हूँ और पूरे रूल रेगुलेशन फॉलो करता हूँ। तो एवरी एसएससी फील दैट कि he has follow all the rule regulation, but government is much ahead than the SSCs because they are making much more compliance each and every day with the SSC can follow basically. So there are a number of things which can be covered in ASMT 10 basically. So this is the first reaction, and I know I think now the things have become so much digitalized way that notice is also coming without application of mind by the officer. The system is selecting on what basis we need to issue the notices, especially SMT 10 basically. So whether they are checking the tax deposit ratio कि इस पर्सन की कितनी टर्नओवर है, इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने आईटीसी से कितना इनपुट लिया है और कैश में कितना इनपुट जमा कराया है इन्होंने बेसिकली, वो वाला फैक्ट है बेसिकली आपका। या फिर इनका 2A 2B के अंदर कितना इनपुट आ रहा है आपका और कितना इन्होंने 3B में कंपैरेटिव क्लेम किया है, 3B फाइल करी नहीं करी, ये सारा जो एनालिसिस हो पा रहा है कहीं ना कहीं सिस्टम के थ्रू एनालिसिस हो पा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली वो उनको ASMT 10 इशू किया जा रहा है बेसिकली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई भी नोटिस इशू करने में। नाउ एक this is a very appreciable thing that now state governments are using very good kind of software for issuing notices. For example, I want to appreciate the Delhi government, because Delhi government is using some software made by the Telangana government in which they are, when they are scrutinize the SSC, in which they try to select each and everything कि आपने कोई भी अगर ineligible आईटीसी आपके 3B में 2B में आया उसको भी वो नोटिस में कवर कर लिया गया कि वेदर आपने लिया नहीं लिया एक अलग बात है, चेक किया जाएगा, बट लेकिन वेदर दिस इज वेदर यू हैव ऑब्टेन दिस और नॉट, आपने किसी कैंसिल डीलर से माल परचेज करा है उसको आईटीसी लिया नहीं लिया वो भी उसमें कवर हो गया बेसिकली। तो ऐसे करके बहुत डिटेल में नोटिस आए हैं डीआरसी 01 इस बार लोगों को। तो कहीं ना कहीं ASMT 10 जो इशू हो रहे हैं सिस्टम ड्रिवन है कहीं ना कहीं, और आगे आने वाले टाइम के अंदर इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, इससे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है जीएसटी के अंदर क्लीननेस आती जा रही है बेसिकली, तो मुझे लगता है उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी बॉस। राइट, थैंक यू शुभम। शुभम जी, हियर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट में एक ऐसा चीज बनाई है लोग एक्चुअली, नॉर्मली इफ यू सी एनी स्टेट राइट, an officer is given certain number of taxpayers under him basically. But in Telangana commercial tax department they follow a separate process. They say that taxpayers should not be disturbed until unless is doing something wrong. जब तक वो wrong नहीं होता है, nobody knows who's your officer you are assigned to it actually. So that is how the Telangana government is doing lot of technology integrations, artificial intelligence in scrutiny of the returns and issue of the notices. Now coming to Mahima ji, ma'am, you have seen this ASMT 10s are being issued. So what are the major reasons your experience says that for these reasons ASMT 10s are issued basically? See, first of all, Gupta ji, I would like to say that ASMT 10 is that weapon in the hands of the officer with the help of which he can create tax terrorism. Because yes, it is being issued using the software. I totally agree. And that is why the notices are being issued, mechanically without any application of mind. What is going to the, a lot of, small assessees, they also get these notices, and what is the number or the value return. Even I have seen notices wherein tax paid as per 3B is more than tax payable as per 1. So it is a negative difference. However, still the notice is being issued.
Now you have to, make a reply, draft it. You have to really support the department. You have to file your responses in time. Maybe that small business does not know how to respond. Now he has to hire a professional. He's just having some, part-time accountant to do his accounts. So, small communities really affected with this. And the points which are majorly covered in ASMT 10, that is a wonderful question. And I would really like to go in detail on this. See, Please. we file GSTR 1, then we file GSTR 3B, then we file GSTR 9, and obviously 5 crore से ऊपर वाले लोग GSTR 9C भी फाइल करते हैं. TDS, TCS जिनका डिडक्ट होता है वो भी एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा अवेलेबल है. फिर 2A 2B रिपोर्ट्स हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं. ये सारी रिपोर्ट्स का डेटाबेस से रिकन्सिलिएशन एक बनता है. सो मैंने 1 में क्या रिपोर्ट करा, कॉरेस्पॉन्डिंग 3B में क्या गया, कॉरेस्पॉन्डिंग 9 में क्या गया, एंड देन 9C में क्या गया. मोरओवर 9C में एक फाइनेंशियल्स के साथ में भी एक रिकन्सिलिएशन जाता है. तो कहीं ना कहीं कोई फिगर्स जब हम 9 बना रहे होते हैं, हम 9C पर नहीं ध्यान देते. तो जो फिगर्स जिस तरह से, और 1 और 3B तो रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं, वी मेक सम रेक्टिफिकेशंस इन 9. वहाँ पे जब फिगर्स के बीच में कुछ मिसमैच आता है, वहाँ पे ASMT 10 उनको पकड़ लेता है. 1 में आपका जो टोटल टैक्सेबल टर्नओवर गया, प्लस आपने फिर 9 फाइल करते वक्त जो टैक्सेबल टर्नओवर रिपोर्ट करा. ऐसा हम भी करते हैं कि अगर हमें एनुअल अकाउंट्स बनाते वक्त पता चला समथिंग हैज बीन मिस्ड, वी विल इंक्लूड. इफ समथिंग हैज बीन इनएडवर्टेंटली टेकन इन 1, हम उसको हटा देंगे वहाँ से, ताकि वो टैक्स पेबल से कम हो जाए, इवन इफ वी हैव पेड एक्स्ट्रा टैक्स, इवन रिफंड क्लेम हो या ना हो. ये सारी फिगर्स को वो रिकंसाइल करता है. आपके 2A में क्या जा रहा है, आपका 9 अभी तक 2A से उठाता है इनपुट को. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. बट जब हम ASMT 10 में जाते हैं, वो एट टाइम्स 2B से ले लेता है कि 2B में आपका इतना इनपुट आ रहा था. फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेरे पास इनपुट लेने का टाइम नेक्स्ट ईयर के नवंबर तक है, बट मैंने इस साल में जो लिया है और जो मेरे 2A में आ रहा है, अगेन उसका मुझे एक नोटिस आ जाता है. एक 9 में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ग्रॉस इनपुट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है 3B से. वहां पे आप उसको ग्रॉस ITC से आपको बताना है कि मैंने 3B में इनपुट पे कितना लिया, सर्विसेज पे कितना लिया, इंपोर्ट्स पे कितना लिया. आप नेट ITC नहीं बता सकते. रिवर्सल हमेशा इसलिए नहीं हो सकता कि वो 2A में नहीं था, वो इसलिए भी हो सकता है कि वो इनएलिजिबल था, या मैंने बाद में पेमेंट नहीं करा, या देयर कैन बी एनी रीजन, 2 बार ले लिया था, कुछ गलती ठीक करी है. तो अगर 3B के ब्रेकअप में मैंने नेट ITC रिपोर्ट कर दिया, तो वहाँ एक मिसमैच खड़ा हो जाएगा. वहीं से ये जो ब्रेकअप वाला टोटल है, ये जाता है 2A के साथ कंपैरिजन टेबल में. तो अगर मैं ग्रॉस को लेके जाती हूँ, तो शायद मेरा 2A के साथ मिसमैच आएगा, जिसका पक्का ASMT 10 आएगा और रिप्लाई करना पड़ेगा. और अगर मैंने नेट को कंपेयर करा, तो इस टेबल के अंदर डिफरेंस आएगा, जो मुझे वैसे भी पूछा जाएगा दैट यू आर रिपोर्टिंग इनकरेक्टली. सो this is, avoiding ASMT 10 is very difficult. We need to have really robust compliances in place and full reconciliations. Perfect. So what you're telling me is, telling the viewers and us, is reconciliation is the ultimate sutra to avoid ASMT 10s, or reply on time for ASMT 10s basically. बिल्कुल. And Avoid I agree. not telling इसको. And there's no room to avoid that, actually speaking. Yes. In fact, I've seen one notice in one of the certain states where the difference is running into 16 decimals. Yes. The client comes and asks me, now I'm ready to pay, which bank is going to issue me the check or RTGS transfer basically. Now I'm really clueless for that actually. What to answer? 16 digits of decimals. Does it really make sense in today's world? When we round off, when we're using ERPs and we're talking about digital India, we always round off to nearest rupee. So from where this officer got this 16 digits was the biggest surprise for me, actually speaking. And I've also Sir, seen... that could be an AI generated notice also. Sir, all your Maybe GST notices are custom generated, sir. Yes. So software ने देखा अच्छा आता है, difference से निकाल के post कर दो. So I'm sharing an incident. One of the officers told me that we have around 25,000 notices pending to be issued before it gets time barred. तो आप देखिए इतनी तो मशीनरी नहीं है. So all this is happening through software. Sir, I'll tell you, many a times the officers also don't know for a particular taxpayer notice has been issued under his name. At the initial days of rollout of GST, when I went to the officer with a reply, he says, when did this notice come from my desk? He was asking me.
So I told, sir, this is a notice issued from your desk only. Oh, it may be the software generated. I'm not aware of it. So that is the state we have today, because we are using machine learning, artificial intelligence a lot for generation and scrutiny of records and flagging of the errant taxpayers. So what ma'am says for us is reconciliation is the only tool for us where we need to bang, keep it and preserve it forever. Shubhamji, the question for you is how do we brace up with these reconciliations? As ma'am has rightly pointed out that we have a lot of small taxpayers. Now, for them, as you have part-time accountants, many of them are not tech savvy, and many a times it happens that even a notice is served, it is coming on the portal where the officers also don't know where to check in the portal, because we have two sections in the portal. One is for the registration, other one is for the other than registrations. And the recent Chennai High Court has clearly said that Madras High Court, this is also causing a problem for the small taxpayers. The digital tech savviness is not there. So the orders passed have been sent back to the uh, adjudicating authority to revisit them basically. So in this process, how do you suggest the small taxpayers to keep a grip or a total control on that basically? Because many a Right. times the email IDs are wrong, or the accountant is not able to see it on the portal correctly, and they're missing the timelines and resulting in issue of notices. So how do we come out of this chakra view basically? I call it a chakra view basically from a small taxpayer's perspective. Right. So, as Mahima ji rightly said, GST has now become more of a reconciliation based tax law. लीगल प्रोविजन तो अपनी जगह है ही, बट हम देखें अगर AS-MT10 या जो भी नोटिस आ रहे हैं, उनमें जो भी क्वेरीज उठ के आ रही है ना, दे आर मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉन्सिलेशन कि 1 और 3B का रिकॉन्सिलेशन दीजिए क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा, 2B वर्सेस 3B का इनपुट रिकॉन्सिलेशन दीजिए क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा, HSN वाइज रिकॉन्सिलेशन दीजिए, ईवे बिल वाइज वर्सेस 3B का रिकॉन्सिलेशन दीजिए. तो इट हैज बिकम मोर ऑफ मैथमेटिक्स रादर देन मोर ऑफ लॉ. तो आप इसमें देखिए, अब जब लॉ और उसके साथ में जब रिकॉन्सिलेशन की डिमांड ऐसी बनी चुकी है, तो वी हैव नो ऑप्शन बट टू अपग्रेड आवर स्किल सेट. वी एंड स्मॉल टैक्स पेयर्स, एवरीबडी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर. अब रिकॉन्सिलेशन हैज बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट, बिकॉज जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, अब वो आप खाली आपके थ्रू डिपेंडेंट नहीं है. आपने किस वेंडर से लिया, अब वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया इस मशीनरी का, और आप किसको सप्लाई कर रहे हैं, दैट सप्लायर इज ऑल्सो अ इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ दिस चेन. तो हमको वो रिकॉन्सिलेशंस करने पड़ेंगे, स्किल सेट्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी, एक्सेल सीखने पड़ेंगे, फार्मूलाज वी लुकअप सीखने पड़ेंगे. Account, not only chartered accountants, cost accountants and professionals, but accountants also and taxpayers themselves should now be tech savvy. They have to learn, they have to understand. क्योंकि देखिए, जैसे ignorance of law is no excuse, हम ये नहीं कह सकते कि जी हम तो reconcile करके नहीं दे सकते. अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन हमको ही देना पड़ेगा कि वाई देयर इज अ डिफरेंस. अच्छा, दूसरा ये भी है कि इनपुट आप देखिए नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर तक ले सकते हैं. तो प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर, 3-3 साल के भी रिकॉन्सिलेशन हो रहे हैं. नॉट ओनली अ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन वेंडर एंड व्हाट यू हैव परचेज्ड एंड सप्लायर एंड व्हाट यू हैव सोल्ड, बट आपका खुद का ही 1 साल पीछे और 1 साल आगे का रिकॉन्सिलेशन, और उसको तैयार रख के आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करने हैं. और यू एंड वन सजेशन दैट आई वुड गिव इज डू नॉट वेट फॉर द नोटिस टू कम. क्योंकि आप देखिए AS-MT10 में टाइम लिमिट टू रिप्लाई इज 30 days, दो इट कैन बी एक्सटेंडेड, बट दे आर इन एक्सेप्शन केसेस. हो सकता है आपको 30 days का टाइम छोटा पड़ जाए, तो आप रेगुलर बेसिस पे ही रिकॉन्सिलेशंस करते चलिए. वी ऑलरेडी नो दैट 4 and 5 आर रेगुलर इशूज़. उन रेगुलर इशूज़ को आप पहले ही उसको समझ के उनका रिकॉन्सिलेशंस अपने पास तैयार रखिए. यही एक मुझे लगता है तरीका है. Perfect, sir. And sir, for you benefit of the viewers, as all the panelists are telling that reconciliation is the need of the hour and digitalization. To promote the small taxpayers for ease of doing business and in the compliances, through GSTN, government has given free software for the small taxpayers. Yes. They are cloud-based, they are mobile-based, they are desktop-based. So it is our duty to reach out to the last mile taxpayer basically,
reach the Correct. unreached, promote this so that everybody has a happy life in the tax ecosystem. People should not say that it is a tax terrorism, but technically, many people we see it in the social media that this word is being used very commonly, even though because of interpretation issues, I would rather say basically. Sir, coming to Anilji, sir, the numbers you gave in your previous answer was mind blowing. The number of stakeholders you're interacting is really, really very big. Now, in such an ecosystem where Indian Oil Corporation is into multiple things, multiple verticals, how are you able to manage it? Is it only because of the discipline you brought in through the team, the vision, digitalization, and the transformation is happening through the knowledge sharing and experience, or anything else is also we are missing actually? मैं कहूँगा जीएसटी ने ना सबका साथ सबका विकास को अच्छा डेवलप किया है Perfect. है ना, क्योंकि मेरी टैक्स लायबिलिटी या मेरा टैक्स क्रेडिट या नेट पेमेंट सिर्फ मुझ पे डिपेंड नहीं है, Yes. है ना। 100%. मेरा sir. मेरा जो सप्लायर है उसकी मैं जान खाऊंगा, मेरा जो कस्टमर है वो मेरी जान खाएगा, ठीक है बॉस। Yes. जैसे कि सेल टैक्स में होता था सी फॉर्म, C form. है ना, आपको कस्टमर से लेना है, वो एलिजिबल है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, Yes. वो मुझे सी फॉर्म दे गया, मैंने दे दिया, डिपार्टमेंट ने कहा जी वो तो एलिजिबल ही नहीं है, अरे मैं कहाँ जाऊँ। Right. है। एक और किस्सा सुना, एक्साइज में कोई मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, Yes. है ना, सेल टैक्स में भी कई जगह मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये थोड़ी सी नई चीज है हमारे देश के लिए। सिंस हमारा साइज बहुत आई मीन विड्थ एंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। जैसे कि जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब आप एक नया चश्मा लेते हैं तो आपको सेट करने में थोड़ा सा कदम धीरे धीरे चलना पड़ता है, अदरवाइज आप गिर जाओगे। एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देता हूँ, जब मैं ओईसीडी में गया था 2019, तो मैंने छोटा सा डिस्कशन किया, जैसे कि आपने कहा कि माइंड ब्लोइंग डाटा है, मैंने बोला कि सर हमारी कंपनी इतने लाख इनवॉइस बनाती है। देन वन पर्सन इंटरप्टेड, मिस्टर जैन यू आर टॉकिंग अबाउट योर कंट्री और योर कंपनी? मतलब दिस इज माय कंपनी, दिस इज लाइक एज आई एम टेलिंग यू। Yes. सो कमिंग बैक टू आवर मैनेजमेंट सिस्टम, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा, मेरा पहला ये था कि हमें अपने कस्टमर वेंडर दोनों को एजुकेट करना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरा आईटीसी डिपेंड करता है मैं किससे माल खरीदूं, Yes. और मेरी लायबिलिटी डिपेंड करती है मैं किसको माल बेचूं। और जीएसटी में तो क्या है, थोड़ा सा लीगेसी सिस्टम भी आ गया कि एंड यूज बेस्ड टैक्स रेट है, जनरली होना नहीं चाहिए जीएसटी में, But unfortunately, we rule- have certain cases. यस। ग्लोबली अगर हम देखें तो जीएसटी सबसे सिंपल टैक्स है, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू और सम ऑफ आवर व्यूअर्स मे बी अवेयर, फॉरेन में टैक्स कंप्लायंस कोई इशू नहीं है ना। हम तो जीएसटी बहुत बाद में लाए हैं कंट्री में, अब तो ये बात हो रही है, आई थिंक इट इज जस्ट टू स्टार्ट, कि जो सेंजन कंट्रीज हैं यूरोपियन, एक कंट्री से परचेज दूसरे कंट्री के टैक्स रिटर्न में अपने आप आ जाएगी, Yes. क्रॉस बॉर्डर, है ना। तो इसमें मेरा एक सजेशन खाली अपना इंडस्ट्री को ये है कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी से काम करना चाहिए, और ये फैक्ट है, एवरीबडी वांट्स टू बी मोर टैक्स कंप्लायंट। किसी की इंटेंशन, मैं सिंपल कह रहा हूँ, चोरी करना नहीं होता। नहीं है। इसीलिए I would like to share one paper of the government just issued on 30th March 2024, guideline for GST field formation and maintaining ease of doing business. Yes. And this is our topic of the day, Yes. right? तो इसमें अगर हम पैराग्राफ आई देखें तो वो कह रहे हैं कि आप जब सम्मन इशू करते हो, आप बेग लैंग्वेज यूज मत करो भाई, जैसे कि इवेजन ऑफ जीएसटी, जीएसटी इवेजन। इससे क्या होता है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है, Yes. है ना। इसीलिए आगे एक और लिखा है पैरा जे, कि आप नॉर्मल इंफॉर्मेशन को सीक करने के लिए नोटिस मत दो भाई, Perfect. आप सिंपल लेटर दे दो यार, है ना।
कि भाई आपका ये मिसमैच है, आप जरा देख लो। और नोटिस तो भाई, नोटिस के नाम से बंदा वैसे डर जाता है। इसे कहते हैं ना बहुत लोकल लैंग्वेज, हुआ बन जाता है हुआ, अरे यार पता नहीं क्या आ गया है ना, अननेसरी की प्रॉब्लम्स। अभी हमने देखा, अगर हम इकोनॉमिक बेस पे जाएं तो अभी हमने देखा कि बड़े बड़े नोटिस आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, है ना, बीइंग ए राइट साइड ऑफ द लॉ, कभी कभी बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि जितना उसमें टर्नओवर नहीं है उससे गुना, उससे मतलब मल्टीप्लाइंग आपकी डिमांड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती है ना, कहीं ना कहीं तो गलती है। तो इसमें क्या है, इंडस्ट्री को भी प्री एंट्री एक्शन लेके गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग एडवांस रूलिंग, है ना। और अपना इंडिया तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसे अगर हम टैक्स लिटिगेशन में फंसे रहेंगे तो बिजनेस कौन करेगा भाई? ये तो बढ़ियाओं का देश है, बिजनेसमैन का, बढ़िया मीन्स बिजनेसमैन, है ना। तो हमें अपनी प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफाई कर लो। जैसे कि मैंने कहा था कि जो मैनेजमेंट में SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये हमें पहले स्टडी कर लेना चाहिए। इसमें कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, हर आदमी को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, चाहे वो मसल पावर हो, मनी पावर हो, नॉलेज पावर हो, मैनेजमेंट पावर हो, है ना, हमें पता है। और ये हमारी अपनी खुद की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि मेरे जो पिछली मेरी टैक्स हिस्ट्री क्या रही है ना, कि मैंने कहाँ कहाँ पे मुझे नोटिस आए, मैंने लर्निंग क्या की, और इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। नोटिस आ ही गया है तो उसका अच्छे से स्वागत करके प्रॉपर जवाब दे देना चाहिए। और गलती को सबसे पहले तो आगे के लिए ठीक करो यार, पीछे का लिटिगेशन करेंगे, है ना, 10% 20% डिपॉजिट करो, कोई बात नहीं। अगर हमें लगता है कि नहीं यार ठीक नहीं लग रही है, अपने जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, गुड कंसल्टेंट्स हैं, उनसे आप कंसल्ट करो कि यार मुझे ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे लगता है कि यहाँ शायद मैं थोड़ा सा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ये तो कहते हैं कि साहब मेरे पैर में दर्द है, मैं एकदम बैठा बैठा उठता हूँ तो मुझे दर्द होता है, तो कहता है कि भाई साहब आप 1 घंटे बाद उठ जाया करो। परफेक्ट है। ऑन ए पर्सनल एंड लाइटर नोट, मैं अपना ऑफिस में खुद प्रिंट लेता हूँ, प्रिंटर मैंने अपने टेबल पे प्रिंटर है, मैं उसको यूज नहीं करता क्योंकि वो कलर भी है, तो मैं कह रहा हूँ वाइट टू वेस्ट कलर, पर दिस इज नॉट द मेन पर्पज, दिस इज आल्सो वन ऑफ द को प्रोडक्ट, माई पर्पज इज मैं उठ के बाहर जाऊंगा, तो उसमें मैं 3 काम करता हूँ। एक तो मैं खुद उठ गया, बाहर मेरा ग्रुप हाउ दे आर बिहेविंग ईच अदर, काम इज नॉट ए प्रॉब्लम, कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको पता है। तीसरा क्या है, जो ऑफिस बॉय है वो इज सपोज टू हैव टू ब्रिंग द प्रिंट आउट टू मी, वो भी एकदम सजग हो जाता है, सब क्या हो गया, मैंने कहा नहीं मैं प्रिंट नहीं, सब मैं लाता हूँ, मैंने कहा नहीं आप ले, तो इससे मैंने 3 काम किए वो। परफेक्ट। तो इसी तरह हमें इंडस्ट्री में भी करते रहना चाहिए, लोग से मिलते जुलते रहें कि भाई किस तरह के नोटिस आजकल क्या चल रहा है। तो ये जो अभी नोटिफिकेशन आया है 30 मार्च का, आई थिंक वी शुड शेयर विद बाय स्प्रेड, हमें शेयर करना चाहिए। डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया, कि नीचे कितना काम होगा वो एक अलग बात है, हमें भी अपना काम करना चाहिए। जहां तक अब आते हैं हम टैक्स मैचिंग की बात, मैं कह रहा हूं अगर जीएसटी इंप्लीमेंट करना तो मैचिंग क्यों करना, है ना बॉस, गलती मैं कर रहा हूं, सजा आप भुगत रहे हैं। मैंने अपना जीएसटी कैंसिलेशन करा लिया, गुप्ता जी का जीएसटी कट गया, है ना, मैंने अपना रिटर्न फाइल नहीं करी या पेमेंट कम किया, महिमा जी इसका सफर कर रही है। मैंने इनसे जो भाई साहब से अलग परचेज किया, वो माल कहीं और मैंने यूज कर लिया। तो डिपार्टमेंट तो डीजीजीआई जो है इन्वेस्टिगेशन, ये तो यही काम है ना। जैसे कि कोई लोअर रेट है, सपोज जैसे कि एक्सपोर्ट के केस में है लोअर रेट है, तो वो फिर मामला गड़बड़ हो गया। तो हमें अपना ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस इन द कंट्री, इंडस्ट्री एज वेल एज ग्लोबली, जीएसटी है ना एक ऑनेस्ट टैक्स है ना, इसमें पूरे एंटायर चेन को ऑनेस्टी रखनी पड़ती है। मेरा ये थोड़ा सा हमेशा ये रहा है, और वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर माई ऑथोरिटी भी है, तो उनको भी थोड़ा सा रिजल्यूशन रखनी चाहिए सर। यू है ना, छोटे छोटे, जैसे कि अभी आपने कहा कि 25,000 नोटिस पड़े हैं, अरे भाई क्वांटिटी के चक्कर में मत पड़ो। आपको 25,000 नोटिस गुप्ता जी को, शुभम को, महिमा को, अनिल जैन को क्यों देना है? आप एबीसी एनालिसिस तो हम लोगों ने ग्रेजुएशन से पहले पढ़ लिया था, यस, है ना, तो वो आप देख लो यार,
परफेक्ट। और आप उसको पहले लो जो कि आपकी कंप्लायंस को इम्प्रूव कर सके, आपकी कंप्लायंस में हेल्प भी कर सके। जैसे कि सबसे पहले जब इनवॉइस आया था तो मैंने सजेशन दिया था, ड्यू टू वी कैन से इंडस्ट्री प्रेशर, गवर्नमेंट वाज नॉट इंटरेस्टेड टू इम्प्लीमेंट इट इन अ फास्टर वे। मैंने कहा नहीं यार, सबसे पहले ना पब्लिक सेक्टर कंपनियों को लगा दीजिए। इवन दो माय कलीग्स क्रिटिसाइज मी, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड टू से प्राउडली माय मैनेजमेंट वाज विद मी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप गवर्नमेंट को बोलिए कि हम इनवॉइस इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मेरे डायरेक्टर फाइनेंस साहब ने, शर्मा सर ने ये कहा कि यार ये बताओ, कोई रिवॉल्यूशन इंडियन ऑयल जैसी कंपनी नहीं कर सकती तो कौन करेगा? Root of the issue is authorities should also identify such taxpayers. Yes. They can improve their own working. तो ये मेरा थोड़ा सा है। इन एंड GST networks, I have good friends there, so they have done a wonderful job along with me. So ये बहुत बढ़िया काम रहा। देखो, कहने का 5 करोड़ की लिमिट है, मेरे हिसाब से तो वॉलंटरी स्कीम लानी चाहिए, 5 करोड़ से नीचे भी कर दे। मैं तो कह रहा हूँ चाय वाला भी अपनी चीनी पे GST क्रेडिट क्यों ना ले। ये तो सिंपल सी बात कहनी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जैसा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वैसे तो ये कि भाई एवरीबडी इज गिविंग टैक्स, यस व्हाई नॉट। साइकिल वाला भी साइकिल खरीदता है तो देता है, पंचर ठीक करा तो देता है। तो टैक्स ना एक एडॉप्टिव होना चाहिए। जैसा कि अभी टेक्नोलॉजी की बात आई, टेक्नोलॉजी अब जैसे कि स्मार्ट मोबाइल इज नॉट ए लग्जरी, इट्स नीड ऑफ द आवर। तो टेक्नोलॉजी इज आल्सो नीड ऑफ द आवर। और GST नेटवर्क हैज डन ए वंडरफुल जॉब। आपको मोबाइल बेस्ड ऐप है, एक्सेल बेस्ड ऐप है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये मेरे हिसाब से हमें करना चाहिए और हमें बेबी स्टेप से काम करना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है। परफेक्ट सर, आपने 2 चीज बताया था व्यूअर्स के लिए। वन इज कंप्लायंसेस, मैनेजमेट, दोनों साथ में जोड़ के जा रहा है आप तो। एंड गोइंग विद द फिलॉसफी ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। संग्राम जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है। बेसिकली अभी ASMT 10 आ रहा है फॉर वेरियस रीजंस। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द इनिशियल डेज वी हैव टेकन द इनपुट टैक्स। संगम जी अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है, देन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू महिमा जी नाउ। बेसिकली महिमा जी, now input tax credit is a bone of contention between the department and the taxpayers, and the 2 points which is being covered invariantly in ASMT 10 is also 16(2)(c) and 16(4). Now I've taken the credit. Matching was not there for 17, 18, 18, 19 also in the initial years, but still I'm asked to return that money basically by reversing the ITC. ASMT 10 says 2A में क्रेडिट आपका था खाली 10 लाख, बट आपने 3B में ले लिया आपने 15 लाख। नाउ कैन आई गो बाय द भारती एयरटेल judgment given to the Supreme Court that my books of accounts are final and GST is only a facilitator? How far will my reply basing on this argument will hold good when I receive a notice under ASMT 10 for that differences? Sir, I think Gupta ji, here we can also look into the circular which was issued in 2022 December, circular 88, I think. And 183, ma'am. 183, December 183. 183 circular. You know, it was a boon, I guess. I'll Yes. share one example. My client's investigation was going on in DGGI. Since it was a huge gap between 2A and 3B, so obviously multiple agencies picked it up. That was picked up in somewhere July, August 22. And there was a clear case wherein one of their vendor deposited the amount, one of their customer they deposited the amount. However, he missed to file the return. So basically सर्विस टैक्स पे चालान डिपॉजिट कर दिया करते थे और वो हो जाता था, बट GST में ऐसा नहीं है। तो उसने टैक्स तो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन उनके इनिशियल पीरियड था, सभी के लिए नया था, तो उन्हें ये नहीं पता था कि इसको सेट ऑफ करे बिना लायबिलिटी पेड नहीं मानी जाएगी। जब तक वो उस सिचुएशन में पहुंचे कि अब रिटर्न में रिपोर्ट करके सेट ऑफ करते हैं, तब तक B2B में वो रिपोर्ट नहीं कर पाए उसको, एंड वो एक्चुअली B2C में रिपोर्ट हो गया। अब सिटिंग इन जुलाई अगस्त 2022 बिफोर द ऑफिसर, इट वाज द सिचुएशन जहाँ पे ये प्रूव करना पड़ा कि हाँ ये डिपॉजिट हुआ है, एक सर्टिफिकेट दिया हम लोगों ने, बट येस लॉ में ऐसा कोई उस टाइम पे प्रोविजन अवेलेबल नहीं था। तो ऑफिसर ऑल्सो काइंडली सेड कि आई डू नॉट हैव एनीथिंग इन लॉ which gives me right to accept this certificate, but it was a problem in initial years, and I guess दिसंबर में जो वो एक सर्कुलर आया, वो एक बड़ा ही बून था इंडस्ट्री के लिए, सारे टैक्स पेयर्स के लिए, कि अगर आपका 2A 3B का मिसमैच है, और इस इट इज अ वेरी डिटेल्ड सर्कुलर,
इस वजह से है, उसने यहाँ रिपोर्ट कर दिया है, ये रिपोर्ट कर दिया है। तो आप इस तरीके से अपनी सप्लाई को प्रूव करिए। अपना सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, बिलो 5 लाख है तो 5 लाख से ऊपर है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का दे दीजिए सर्टिफिकेट, या सीएमए का दे दीजिए। तो वो उसका हम बेनिफिट ले करके 17, 18 और 18, 19 का 2A 3B मिसमैच बड़ा इजीली हम लोग उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। गोइंग बाय द जजमेंट, अगर हम चाहते हैं भारतीय एयरटेल के जजमेंट से, तो आई एम श्योर कि लोअर अथॉरिटीज के लेवल पर वो उसका बेनिफिट हमें बेस्ड ऑन द जजमेंट नहीं देंगे। तो इस सर्कुलर से लोअर अथॉरिटीज बहुत इजीली हमें उसका बेनिफिट दे भी रही हैं। दे आर रियली एक्सेप्टिंग इट। वो सप्लाई चेक कर लेते हैं, प्रोसेस चेक कर लेते हैं, सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करते हैं, दीज थिंग्स आर इन प्लेस. By 1920 already matching concept was in place, so for initial 2 years I think this can help really. Right. So you're telling that the circular which is issued in December 2022, circular number 183, is the Yes. biggest weapon to safeguard ourselves with the ASM to 10 notices for differences in ITC. Yes, Mahima ji, I agree with you. In one of my clients' case, it's one of the biggest industrial groups. Their vendor, he has deposited tax in 3B and paid it also. The only mistake he has done, as you rightly pointed out and shared your experience, they did not file GSTR1. Which one? So I don't know, starting में कौन सा ये इश्यू इंटरप्रिटेशन निकाला है कि आप 3B में फाइल करो, फिर आपको कुछ फंड का रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर वाज नो लिंक बिटवीन 1 and 3B. Yes, initially, it was new for our professionals also. It was new for the government also. It was new for everyone. So, मतलब इनिशियल का पीरियड बहुत ही चैलेंजिंग सबके लिए रहा है। तो कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, मतलब ये जो अनिल सर ने एक एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया था होटल्स वाला, ये मतलब मुझे भी बड़ा फेवरेट मेरा एग्जांपल है ये। इनिशियली आई हैव सीन केसेस, बिकॉज किसी को भी उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी। तो 17-18 में ऐसा एक समझ था इंडस्ट्री में भी, कई प्रोफेशनल्स में भी, कि हमें फिर 1 नेशन 1 टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जब हमें एक दूसरी स्टेट का इनपुट मिल ही नहीं रहा। तो ये एक कंफ्यूजन था जो ओवर द पीरियड ये क्लियर हुआ है एक ईयर। तो आई गेस गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इन 17, 18 एंड 18, 19 स्क्रूटनीज एटलीस्ट। शुभम जी, आपके लिए क्वेश्चन है सर। अभी ASM 10 आ गया, आपने पहले वाला सवाल में आपने बोला कि 30 दिन के अंदर हमको रिप्लाई देना चाहिए। Now, if you go through the provisions carefully given in 61, it never talks about a personal hearing basically. So I reply to that ASMT 10 through ASMT 11 and I upload it on the portal. And it is more or less like a faceless assessment, what we have it in income tax. So in absence of personal hearing, do you really feel that principles of natural justice is being addressed in this? Or should this section specifically talk about personal hearing before issue of ASMT 12 after submission of reply in ASMT 11 by the taxpayer on receipt of ASMT 10? See, when a notice is issued in ASMT 10, the premise behind this notice is what you have rightly said, कि interference minimum रहना चाहिए. There should be no physical hearing and the data which is already available with the department, खाली उसी data के basis पे ही they should do the scrutiny of the returns. उनके पास 1 है, 3B है, Form 9 है, 2B है. They should not ask for anything additional. For example, profit and loss account दे दो, या फिर आप डिटेल्स ऑफ सप्लायर्स दे दो, या सेल्स इनवॉइसेस दे दो. So it is not a very comprehensive section to do an assessment. बेसिक स्क्रूटनी का सेक्शन है. तो बेसिक स्क्रूटनी के लिए आप अगर बिना फिजिकल हियरिंग के भी ASMT 11 में कोई जवाब देते हैं तो आई एम श्योर ऑफिसर्स को समझना चाहिए. अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसके लिए हमको और डेटा चाहिए, दे नीड मोर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, then I think section 61 is not the right section for them to invoke. If they want to do a comprehensive assessment, then there are various sections. Section 65 है, बड़ा detailed section है GST audit का. Section 66 special audit, 67 is for investigations. Yes. Then 71 में आप समन दे के भी बुला सकते हैं. If you really want to, have a physical meeting with the taxpayer to understand certain things. So I think those other sections are the right sections to have a physical hearing and to do a comprehensive assessment. But 61 का दायरा मैं समझता हूँ थोड़ा छोटा है in comparison to other sections. और बिना physical hearing के भी ASMT 11 से अगर हम जो उनके जो डिमांड्स हैं उनको हम रिप्लाई कर सकें, तो आई थिंक इफ द ऑफिसर इज अंडरस्टैंडिंग एंड ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द लीगल प्रोविजंस, तो मुझे लगता है केस हो जाना चाहिए इन द फेवर ऑफ द एसएससी प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्चुअल टैक्स इवेजन. सही है सर. महिमा जी, आपके लिए अभी
शुभम साहब ने बताया कि सेक्शन 61 is having a very limited scope, which can lead to the other provisions like audit or an issue of notice under 73 or 74 or call for summons and everything. Have you ever seen practically in cases where ASMT 10 has led to special audit or departmental audit or issue of summons as of now at least? Not exactly. Not summons. They generally do not issue. They call up, and you also do not ignore. Obviously, we visit, or maybe the client also visit. The assessees also like to visit, and they do not wait really for the summons. Return records that okay they have been called upon to record a statement. But 73 notices, yes, if ASMT 10 is not dropped, then yes, they take the course of 73 section. But 65, 66, at least practically, I have not seen so far. Okay, even that is the case with me. That is the reason I'm asking, have you ever seen such cases? No, not yet. Practically what happens sir, legally physical hearing की जरूरत नहीं है, लेकिन physical hearing हो ही जाती है, तो इसमें 65 की जरूरत ही नहीं पड़ती. And 65, 66 को इन्वोक करने के लिए ना एक्चुअली जो ज्यूरिसडिक्शनल या रेंज लेवल पर है ऑफिसर के लिए भी एक लंबा प्रोसेस शायद रहेगा टू पुट अक्रॉस, जब तक इसको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा कि ये केस रियली डिजर्व सम स्पेशल ऑडिट्स. अदरवाइज वो ऑडिट ऊपर से सिलेक्ट होकर के आता है कि इन ये असेसीज हैं इस लिस्ट में, इनका ऑडिट करना है, तो दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय द हायर ऑफिशियल्स. Yeah, by the DG Grams submits all this information, it goes to the field from the raid, goes to the commissioners to the lower level officers, and they're mandated to do that actually. Correct. So ideally it should be the top down approach or bottom up approach for audit. Ideally it should be both ways, I guess. Sometimes a junior officer maybe since he has the day to day routine interaction with the assessees, so maybe he can also be a whistleblower कि इस केस में एक ऑडिट का जरूरत है, तो बट वो 73 से नोटिस इशू करके ही काम चला रहे हैं कि अब इसके आगे खुद देख लो. Yes, but if you see practically right, all the notices issued for last 5-6 years, I can say it is purely arithmetic notices only. Nobody is going into the depth of the provisions, except whether it is on classification or place of supply or blocked credit or anything. It's purely based on arithmetics only, basically. So I would never say that all these compliances, what we are having, the litigation, is not that challenge. But when I'm filing reply for ASMT 10, do you advise your taxpayers or as a professional, do you quote any case laws and submit the replies, or just give the reconciliation statements and keep quiet? So I'll ask with Anil ji and then Shubham ji and then Mahima ji. मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ अभी, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि ये जो है ना GSTR 1, 2A, 2B, 2C, अगर इवन दो अब कहना आसान है, पहले नहीं बोला मैंने भी, आई शुड हैव आल्सो सजेस्टेड व्हेन आई वाज इन्वॉल्व, इनका नाम ना सिंपल रखना चाहिए. Yes. GSTR 1 सेल रजिस्टर है, 2 परचेज रजिस्टर, क्योंकि 2A 2B कुछ नहीं है. Yes. 2 साइड ऑफ द कॉइन है. तो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन था, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में था तो हम स्मॉल SME की तो क्या बात करेंगे, है ना. दूसरा कि हो सकता है ऑथोरिटी ने सोचा हो कि नहीं इटली में बहुत अच्छा चल रहा है, फ्रांस में बहुत अच्छा चल रहा है, इवन अमेरिका में GST नहीं है, शायद वो भूल गए थे, है ना. तो उस समय थोड़ा इस बात को ध्यान रखा जाता. जैसे कि एक फेमस कवि है कुमार विश्वास, उन्होंने बोला कि भाई तुलसीदास जी ने टैक्स के लिए क्या कहा था कि सूरज की तरह होना चाहिए, जहां जहां पानी है वहां से सोखे, जहां सूखा है वहां पे दे दे. है ना. तो मेरे हिसाब से हम ना हर चीज को टैक्सेबल करने के चक्कर में शायद हमने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की है. हमने मतलब ऑल इंक्लूडिंग ऑथोरिटीज, all stakeholders basically, all stakeholders, entire value chain. Yes. अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, इवन दो इट इज नॉट रिलेटेड विद मोस्ट ऑफ देम, कि हमने काफी चीजें GST के बाहर रखी, चाहते हुए नहीं चाहते. उससे भी ना थोड़ी सी डिसरप्शन आई सिस्टम. और दूसरा हमने क्या किया, लीगेसी को भी हम GST में ले आए. ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा. अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब हमने स्मूथ क्रेडिट मैकेनिज्म दिया है, या तो आप टैक्स लगाओ मत लगाओ, तो फिर आप क्रेडिट दे दो, ज्यादा पूछताछ नहीं करो. Yeah, seamless credit basically across the value chain. दे देना चाहिए. और फिर हमने ना बीच में ना 17.5 डाल दिया,
वो आज तक समझ में नहीं आ रहा कि फिक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। ये एक्साइज में भी क्लियर नहीं था, WCT जो सेल टैक्स में उसमें भी क्लियर नहीं था। नहीं था। हम वापस ले आए, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन बड़े प्यार से दे दी, जो बुक में कैपिटलाइज हुआ। अरे इस इंडेक्स के जमाने में तो आप 2 लाख को कैपिटलाइज करते हो, मैं अपनी कंपनी के साइज के हिसाब से 20 लाख को कैपिटलाइज करता हूँ। यस, एक लिमिटेशन आपने दी है। तो हम ना इंटरनेशनल लॉ को हमने देसी तरीके से लगा दिया लगता है मुझे। इसका ना साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। कमिंग बैक टू आवर नोटिसेस, मेरा थोड़ा सा सजेशन मैंने उस समय भी कहा था, लास्ट टू लास्ट ईयर आई वाज आल्सो मेंबर ऑफ ICAI GST जो कमिटी है हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस कमिटी। जब ये ऑडिट विड्रॉल का प्रपोजल था तो मैंने एक सजेशन दिया था, मैंने कहा हमें बोलना चाहिए कि GST ऑडिट कराना, चाहे वो CA करे CMA करे, वो हु इज एलिजिबल, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए एक्सपेंडिचर। ये एक इन्वेस्टमेंट है। यस, ये मैंने बहुत स्ट्रांगली कहा, पर ये चीजें शायद वहां तक पहुंचा भी नहीं है। Yes. शायद नहीं पहुंची। एनीवे, तो मेरा अभी भी एक अपने सभी बिजनेस कम्युनिटी को यही सजेशन है कि आप ऑडिट करवा लो यार, है ना। और आप खुद कराओगे तो शायद कॉस्ट कम पड़ेगी, और जो ऑडिटर है वो भी कहेगा कि यार मुझे एक्स अमाउंट मिल रही है, मैं एक्स प्लस बाई का तो इसको बेनिफिट करा दूं। ठीक है बॉस। मैं एक Yes. लाइव एग्जांपल देता हूं ऑस्ट्रेलिया का। वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड, ही वाज इन इंडिया विद HDFC बैंक, ही इज नाउ प्रैक्टिसिंग इन मेलबर्न। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे टैक्सेशन का तो बड़ा बिजनेस स्कोप होगा। उन्होंने कहा नहीं सर, एक तो कोई बंदा अपनी रिटर्न खुद नहीं भरता, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने कहा यार ये बढ़िया, जैसे कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, है ना, डॉक्टर अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं करता, यस, वो नहीं करेगा, वो इमोशनल हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ एक्चुअली। तो हमें क्या करना चाहिए, खुद को एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी छोटा बिजनेस। भाई बड़े की बड़ी कॉस्ट, छोटे की छोटी कॉस्ट, सबका अपना अपना पॉकेट साइज है। मेरा पॉकेट साइज जितना है, आपका इतना हो सकता है, सबका अपना है। तो इसमें ना एक टैक्स ऑडिट भी करा लेनी चाहिए, इवन दो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट है आई मीन प्रोविजन है नॉट मैंडेटरी, ये वॉलंटरी है, लेकिन ये वैल्यू एडिशन है। मेरा अपना ये कहना है। और नोटिसों की जहां तक बात है, सबसे पहले तो नोटिस आता है ना, उसको हमें समझना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, सीधे लिटिगेशन में घुस जाते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जब भी किसी ट्रांजैक्शन की बात करो, सर वो ना X&Y कंपनी का डिसीजन है। डिसीजन कहां से आ गया, GST तो भी आया है कि नहीं साहब, वो सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गई कि नहीं, सब एक्साइज में है। जैसे कि इमूव प्रॉपर्टी एक इंडियन ऑयल का ही डिसीजन है, आप उसी को लेके घूम रहे। अरे भाई ये GST है, एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स में सेल पे लगता है, सर्विस टैक्स में प्रोविजन ऑफ सर्विस पे लगता था। GST का बड़ा बीच का सिस्टम है, ना ये सेल है ना ये सप्लाई है, मतलब आई मीन ना ये सेल है ना ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये सप्लाई है। जैसे कि स्टॉक ट्रांसफर, शुरू में लोगों ने बहुत गलतियां की। आप अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्साइज तो लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे, चाहे वो सेम स्टेट में जाए, सेल टैक्स नहीं लगता था। अगर वो सेल टैक्स अगर सेम स्टेट में जा रहा है तो मीन्स विद इन सेम रजिस्ट्रेशन। वैसे ही दूसरे स्टेट में जाएगा तो या तो आप CST पे करो। उसने कहा कि भाई सेल को तो सेल परचेज हो नहीं सकती, तो आप F फॉर्म दे दीजिए। F फॉर्म इज नथिंग बट ए गारंटी कि आप इसे फर्दर सेल करके सेल टैक्स जमा कराओगे, नहीं तो आपको सप्लाइंग स्टेट में टैक्स लग जाएगा, है ना। तो यही हमें GST में समझनी चाहिए चीजें, ट्रांजैक्शन कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मेरा क्या है, नोटिस आया है वो क्यों आया है। अगर हमें लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है तो हमें बिल्कुल जवाब देना चाहिए। लिटिगेशन साइड शायद छोटी मोटी चीज, अगेन हमें भी एज ए इंडस्ट्री में हमें ना ABC एनालिसिस करना चाहिए, किस चीज का लिटिगेशन करना है, किसका नहीं करना है। पर अनफॉर्चुनेटली अभी मैं एक बार देख रहा था, गवर्नमेंट ने भी अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई थी डायरेक्ट टैक्स में, वो विड्रॉ कर ली। अरे यार, एक अच्छा स्टेप आपने कभी लिया, से 5 लाख से नीचे का हम लिटिगेशन हाई कोर्ट में नहीं करेंगे, या 50 लाख से ऊपर या 1 करोड़ से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो चीजें विड्रॉ हो गई। तो कहीं ऐसा लगता है कि हमें ना ये बिजनेस हम कहते तो हैं, पर दी ऑथोरिटीज
are under obligation to ensure that it is easy of doing business to the suppliers. सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, है ना बॉस? तो नोटिसों का जवाब, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि प्रोफेशनल वे में देना चाहिए, आधा अधूरा नहीं. Yes. आप कंसल्ट करो, अपनी बिजनेस प्रोसेस को लगो. अगेन सेम थिंग, ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई एम टेलिंग, अगर आप गलती कर रहे हैं तो एट वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप ठीक कर लीजिए भाई साहब. Yes. जो पहले हो गई उसको बाद में देखते हैं, और उसके लिए हमें अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ गाइडेंस रखनी चाहिए. तो ये मेरा थोड़ा कहना है कि हमें ऑडिट कंटिन्यू करनी चाहिए बिजनेसेस. ये मेरा सजेशन है. Perfect, sir. Mahima ji, आपका क्या राय है? How to reply these ASMT 10 notices in a complex way, simple way, accept the mistake, go ahead. सब बिल्कुल ASMT 10 जो भी हमारा पूरा डिस्कशन हुआ, हमने ये समझ लिया है कि ये पूरा एक नंबर्स का और रिकंसिलिएशंस का नोटिस है, फैक्ट्स Yes. बेस्ड नोटिस है कि हमने क्या बेचा, क्या खरीदा और कहाँ क्या गलती कर दी है. बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड है. यहाँ पर Yes. कहीं पर वो नोटिस नहीं आता कि हमारे ओपिनियंस में क्या डिफरेंस है. ये तो बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड है. तो इसका जवाब एकदम जैसे अनिल जी ने बताया कि बिल्कुल एकदम क्लियर कट हमें उसका जवाब देना चाहिए. बिल्कुल पूरे फैक्ट्स के साथ में अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाहिए. और अगर हमें कहीं देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई वाकई में गलती हो गई है, कोई टैक्स बच गया है, तो इसी स्टेज पर मैं तो ये कहूंगी कि ASMT 11 के साथ ही DRC 07 भी दे दीजिए हाथ किया, ताकि वो आपका एक ना रेपो भी बिल्ड करता है कि आप कितने ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को. कहीं ना कहीं अगर किसी पॉइंट पर आपको लग रहा है कि हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऑफिसर एटलीस्ट आपको एक आपके साथ हार्श नहीं होगा. मैडम सॉरी टू इंटरवेंशन, एक आपने रेपो वाली बात की जी. यू रिमेंबर मॉडल GST लॉ में भी था, फाइनल में भी आया, स्टार रेटिंग ऑफ टैक्स पेयर. यस सर, वो अभी तक नहीं आया सर, एक्चुअली अभी तक आया नहीं है. वो नहीं आया. आई हैव बीन वेटिंग कि मेरी कंपनी कब स्टार रेटिंग में आएगी. एक मैम सॉरी अगेन आई एम टेकिंग योर टाइम. No एक problem, बड़ा sir. अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता हूँ. वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम है AEO, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर. हाँ, कितने लोग जानते हैं? वेरी हैंडफुल सर आज का डेट में. बहुत कम लोग जानते हैं. उसके बाद Yes. मूवर की स्कीम है, कितने लोग जानते हैं? Yes. लेकिन उसमें सबसे अच्छा फायदा क्या है, वंस यू आर AEO टायर 3 जो कि इंडियन ऑयल है हमारी कंपनी, आपकी एक इंटरनेशनल इमेज बिल्डअप होती है. आपको हर कंसाइनमेंट को इंस्पेक्ट नहीं कराना पड़ेगा, आपको Yes. बहुत सारी चीजें नहीं करानी पड़ेंगी, बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, ये चीजें नहीं है. तो मैम सॉरी आई जस्ट पुट कि आपने रेपो वाला बहुत अच्छा वर्ड यूज किया. वी शुड बी डू दिस. यस यस, इट गोज लॉन्ग वे. मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि आप अगर एसएससी कैसा होता है वो ऑफिसर को पता होता है. अगर वो टाइम से जवाब देता है, टाइम से अपनी रिटर्न्स फाइल करता है, वो 6 महीने हर महीना डिले करता है रिटर्न, उसके बाद आप उसका कोई नोटिस आया कहेंगे आपका तो हर हमेशा ही डिलेड होता है. तो कहीं ना कहीं वो एक इमेज बिल्ड करता है जैसे आपके कंप्लायंसेस होते हैं. जहां तक आपने बड़ा स्पेसिफिक गुप्ता जी क्वेश्चन पूछा था कि केस लॉज क्या कोट करने चाहिए, मेरा सुझाव होगा कि हमें रिफ्रेन करना चाहिए वहां पे केस लॉज का, क्योंकि ये बड़ा फैक्ट बेस्ड आंसर है. और मैं एक वेपन अपने हाथ में भी रखना चाहूंगी कि उन फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन पर ऑफिसर कैसे डिजाइन करने वाला है नोटिस. अगर मैंने ही पहले अपने केस लॉज बता दिए तो शायद मैं कहीं ना कहीं पहले ही अपने सब हार गई. तो कहीं ना कहीं पहले उसको मैं फ्रेम करने दूंगी उसका नोटिस. परफेक्ट. शुभम जी, आपका क्या राय है सर? I agree with the submissions made by Anil ji and Mahima ji. So it's basically, I'll say it is more of an art and not a science. Science. You'll have to see कि कैसे हमें उसको केस टू केस बेसिस पे देख के रिप्लाई क्रिएट करना चाहिए. Yes. केस लॉस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ नहीं है. और इसमें हम यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी है, एसएससी ने गलती करी है, ज़बरदस्ती बोल के कि नहीं जी देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी इन द वे ASMT 10 इज इशूड, या नहीं इसको तो आप शो कॉज के रूट से लेके जाइए. देखिए, व्हेन देयर इज एन एरर, बी अ ऑनेस्ट टैक्स पेयर, एक्सेप्ट इट एंड पे थ्रू DRC 03. आप उसको पूरा लिटिगेट करेंगे, उसके बाद व्हाट विल हैपन, इट विल गेट रिमांडेड बैक, और जो ऑफिसर होगा वो एक डिफरेंट करेक्ट रूट के थ्रू फिर से आपको नोटिस भेजेगा. Then at that time you'll again have to pay the demand. Of course, there is a slight option, possibility कि तब तक वो केस इतना लंबा खिंच जाए कि वो केस ही टाइम बार हो जाए. But then I think it doesn't make practical sense कि आप उसको जबरदस्ती litigate करते हुए उसको इतना लंबा खींच दे जहाँ आपकी खुद की ही गलती है. So small matters where you think there is an error, pay through DRC 03. No need to go into too much of litigation and case laws at this stage.
नहीं तो कल को आपको ही इंटरेस्ट का बर्डन लंबा खींचेगा. So it doesn't make sense of going too much into tax laws at this stage. Thank you, Shubham ji. Sandeep ji, do we have any questions from the viewers actually? नहीं सर, कंक्लूड करते हैं अब इनको. Yeah. Thank you, Shubham ji, Anil ji, Mahima ji, for your wonderful deliberations and sharing your knowledge. And thank you, Sandeep ji, for giving us an opportunity to discuss one of the important topics under GST actually. Sandeep ji, over to you. नेक्स्ट संडे को सर 11 बजे डायरेक्ट टैक्सेशन का कोई टॉपिक पर्टिकुलर लेकर पैनल डिस्कशन करेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे को फिर से जीएसटी का 8 PM में ये पैनल डिस्कशन रखेंगे. हम लोग तैयार हैं कि हर वीक में एक पैनल डिस्कशन होना चाहिए और जिसमें मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी प्रोफेशनल अवेलेबल रहेंगे उन लोगों के साथ हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करें इनको. और अनिल जैन सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इंटरनल ऑडिट का स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें अभी देख रहे हैं, उन्होंने कमेंट में किया है कि एन ठाकुर सर हैं, एनटीपीसी के इंटरनल ऑडिट देख रहे हैं. तो एक इंटरनल ऑडिट का टीम बनाकर जिसमें हम आपकी अवेलेबिलिटी चाहेंगे कि आप रहें उसमें और उसके ऊपर पैनल डिस्कशन करेंगे. थैंक यू शुभम सर, थैंक यू शुभम सर, थैंक यू महिमा मैम. हम लोग कनेक्ट होकर रेगुलर बेस पे इस प्लेटफॉर्म से ट्राई करेंगे प्रोग्राम करने का. हम लोग काफ़ी फेस टू फेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं और थोड़ा कम किए हैं दिल्ली में क्योंकि इस टाइम में थोड़ा गर्मी का मौसम ज़्यादा है और लोग नहीं आना पसंद करते हैं. तो सोचा चलो ऑनलाइन ये सर्विसेज हम दे सकते हैं, तो यहाँ अवेलेबल होके हम लोग ट्राई करेंगे कि बार बार रिपीट करें और कंटिन्यूस वे में चलता रहे. तो आप लोगों ने टाइम निकाला, इसके लिए सबको धन्यवाद. नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलते हैं. Yeah. Thank you. Thank you. थैंक यू सर.